کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس صورت میں اگر ہمیں چھینک آ جائے، الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے اکیلے پڑھ رہا ہو یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو، تو اس کو چھینک اگر آ رہی ہے خود نمازی کو، تو اس نے الحمدللہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں کہنا، نماز کے بعد کہہ لے۔ لیکن اگر کسی نے نماز کے دوران ہی چھینک آئی اور اس چھینک پر الحمدللہ خود کہہ لیا تو اس کی اپنی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر کسی اور کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا اور یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے چھینکنے والے کی چھینک پر الحمدللہ کہتے ہوئے اسے سنا ہے، اب اگر جواب میں جو یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، اگر اب یہ جواب کے طور پہ اگر دوران نماز کسی نمازی نے یرحمک اللہ کہا تو اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ اپنی چھینک آنے پر یوں الحمدللہ کہنے کی صورت میں نماز نہیں ٹوٹتی، کہنا نہیں چاہیے، کہہ لیا تو نماز نہیں ٹوٹے۔ اچھا، یہ نماز کا تو ہے، لیکن ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کوئی خاص وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو اس دوران اگر چھینک آ جائے تو ہم اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس دوران الحمدللہ کہہ سکتے ہیں۔ جی، اگلی کال لیں گے ہم۔ قرآن کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہکم وایدیکم، ایسا کی ذرا وضو کے اعتبار تھوڑی تشریح کر دیجیے گا۔ یہ وضو کے جو 4 فرائض ہمارے وضو کے 4 فرائض یہ بیان کیے گئے ہیں سورہ مائدہ میں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو، یعنی اگر کسی کا وضو نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، تو فرمایا گیا فغسلوا وجوہکم، تو اس کو چاہیے اپنے چہروں کو دھوئے، یعنی تم اپنے چہروں کو دھو، اور ایدیکم من المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ تو یہ جو کوہنیاں ہیں، ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی کا بھی دھلنا ضروری ہے، یہ کوہنیاں بھی دھونے کے فرض میں شامل ہیں، تو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے کچھ سر کے حصے کا مسح کرو۔ تو شرعی اعتبار سے حدیث شریف کی روشنی میں اس کی مقدار جتنی ہماری پیشانی کے بال یہ کہلاتے ہیں جو قریب اوپر سر کے ابتدائی حصے میں ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وضو کے دوران اپنے سر کے ابتدائی حصے پر ہی ہاتھ پھیر کے مسح فرما لیا تھا، تو یہ سر کی چوتھائی مقدار بنتی ہے۔ تو فقہ حنفی کی روح سے سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ بھی وضو کا تیسرا فرض ہے، اور چوتھا فرض ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو یوں وضو میں 4 فرائض ہیں جن کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا ہے۔ جی، وضو کے 4 فرائض کے حوالے سے بھی بیان ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ مزید اس کی تفسیر اگر یہ دیکھنا چاہیں تو تفسیر خزائن العرفان ہے، اسی طرح دعوت اسلامی کی مطبوعہ تفسیر مفتی ابو صالح مفتی محمد قاسم قادری دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز کتاب ہے تفسیر صراط الجنان، تو اس سے بھی اس آیت کی تفسیر کو یہ تفصیلی طور پہ پڑھ سکتے ہیں، مزید احادیث بھی اس کے اندر مذکور ہیں۔ جی، اگلی کال لیں گے ہم۔
एक सवाल था कि अगर कोई नॉन मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करता है तो उसके जो पिछली नमाजें होंगी कज़ा हो जाती हैं, तो वो क्या वो कज़ा अदा करेगा या नहीं करेगा? जी, अल्लाह की रहमत से अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो उसकी साबिक़ा ज़िंदगी का क्या होगा? देखें, अभी जो ज़माने कुफ्र इसका गुज़रा है, तो ज़माने कुफ्र में उसके ऊपर जो नमाज़ों के औकात आते थे तो वो उस वक्त नमाज़ों की अदायगी का मुकल्लफ नहीं था। सही। तो अब जो नमाज़ें गुज़र चुकी हैं, यानी जिन नमाज़ों के औकात ज़माने कुफ्र में गुज़र चुके हैं, उन नमाज़ों की क़ज़ाए उम्री इसके ऊपर नहीं है। अलबत्ता अगर किसी मुसलमान ने जो हालत इस्लाम में नमाज़ें छोड़ी हैं, उसके ऊपर इन नमाज़ों की क़ज़ा लाजिम है। ठीक। SMS भी हम शामिल करते हैं। ये बिनते अब्दुल अहद हैं कश्मीर से, और ये पूछना ये चाह रही हैं कि अगर हम बंद कमरे के अंदर साउंड लगा कर महफिल करते हैं, नात ख़्वानी वगैरह, और आवाज़ बाहर नहीं जाती, तो क्या हमारे लिए जायज़ होगा ये? इस तरह के रूम ये स्टूडियो वगैरह में तो होते हैं जो साउंड प्रूफ रूम्स बनते हैं। आमतौर पे घरों में ऐसे रूम नहीं होते कि जहाँ पे अंदर की आवाज़ बाहर ना जाए। तो इस हवाले से ख़वातीन को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि अगर मर्दों तक आवाज़ पहुँच रही है, स्पीकर अंदर ही कमरे में लगाए हुए हैं और आवाज़ बाहर अजनबी मर्दों तक पहुँच रही है, तो फिर इनको इतनी आवाज़ में नात पढ़ना कि जिससे अजनबी मर्दों तक आवाज़ पहुँचे, इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये अच्छी तरह गौर कर लें, चूँकि अंदर बैठने वाले शख्स तो यही गुमान कर रहा होता है कि इसकी आवाज़ महदूद ही पैमाने पर हमने रखी है और हमने अंदर ही आवाज़ आ रही है, बाहर नहीं जा रही होगी। तो ये नहीं जा रही होगी, इस पे अमल ना करें, ये बाकायदा देख लें। ठीक है। अगर बाहर किसी अपने घर के महरम को ही दे दें, पहुँचा दें, और यहाँ कोई मदनी मुन्ना कोई नात पढ़ रहा और बाहर अगर आवाज़ आ रही है, तो फिर ख़वातीन को एहतियात करना लाजिम है। जी, अगली कॉल लेंगे। मेरा ये दारुल इफ्ता में सवाल है कि अगर गुस्सा आ जाए बंदे को तो बोले कुछ भी ना, और इस तरह लेकिन दिल में या इस तरह बहुत से मतलब खतरनाक वसवसे आए किसी दूसरे के बारे में, तो वो कंट्रोल ही रखे, और इस तरह तो उसमें क्या गुनाह तो नहीं मिलेगा या उस तरह कोई बात तो नहीं? अच्छा, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन ज़ाहिर है उसका इजहार नहीं कर रहे, सब तो कर लिया, लेकिन दिल की कैफियत बड़ी अजीब व गरीब है, आप क्या करें? देखें, जब तक गुस्से को अमली तौर पे नाफिज नहीं करेंगे, जी, और उस गुस्से में भी फिर ये देखना पड़ेगा कि उस गुस्से का इस्तेमाल कहीं हुदूद शरअ से आगे तो नहीं निकल गए, सही, नाजायज़ किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं कर रहे, जुल्म तो नहीं कर रहे। सही। तो अगर जब तक अपने गुस्से को अमली प्रैक्टिकल में नहीं लेकर आए और बस गुस्से में भरे हुए हैं और इरादा हो रहा है कि बस अब इसको मैं यूँ तकलीफ़ पहुँचाऊँ, इस तरह नुकसान कर दूँ, कत्ल कर दूँ, हाथ पाँव तोड़ दूँ, ये महज ख़यालात अगर आ रहे हैं, जहन में बहुत सारे फासिद तरीके भी शामिल हो रहे हैं, जहन उन चीज़ों की तरफ माइल भी हो रहा है, तो जब तक इन्होंने वर्क शुरू नहीं किया उस वक्त तक इनकी गिरफ्त नहीं है। सही। अच्छा, खुद ब खुद बहुत सारे ख़तरनाक किस्म के वसवसे ख़यालात भी आ जाते हैं जिनको आदमी लाना नहीं चाह रहा होता, लेकिन वो प्लान जहन में आ रहे होते हैं। तो अगर वो गुनाह के इरादे हैं तो उस पर अभी इन पे गुनाह नहीं लिखा जाएगा। सही। अगर वो कुफरिया वसवसे हैं, ख़यालात हैं, तो फ़ौरन इनको झटक दे और उनकी तरफ तवज्जो ना दे कि महज वसवसे और ख़याल से ईमान पर फ़र्क नहीं पड़ता। जी, अगली कॉल लेंगे। ये पूछ रहा था कि अगर किसी को नेकी की नीयत से कोई अच्छी बात बताई जाए तो उसका क्या अजर सवाब है, और वो सदका जारिया भी बन सकता है क्या इंसान के लिए? जी, नेकी की दावत अगर पेश की जाती है तो उस पर अजर है, सवाब है, क्या? बिल्कुल, अजर व सवाब दिलाने वाले उमूर में से और जिन उमूर को सदक़ात में शुमार किया गया उनमें से अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर भी है। किसी को अच्छी बात का हुक्म देना ये सदका है, बुरी बात से मना करना ये भी सदका है। तो इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक मशहूर जो अल्लाह ताला से आपने अर्ज़ की, जो अपने भाई को नेकी की दावत दे, बुराई से मना करे, उसका अजर क्या है? तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो इरशाद फरमाया, उसका खुलासा यह है कि उसके एक एक कलमे पर उसको एक साल की इबादत का सवाब और उसको जहन्नम की सज़ा देने में अल्लाह ताला हया फरमाएगा। तो बेशुमार इसके फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं, और इतना किसी को हम नेकी की दावत दे रहे होते हैं, बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि वो शायद हमारी बात को कबूल नहीं कर रहा
یا وہ ہماری بات پہ عمل نہیں کرے گا، صحیح، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کام ہے کسی کو نیکی کی دعوت دینے کا موقع ہے، برائی سے منع کرنے کا موقع ہے، تو ہم اس کام کو، اس فریضے کو سر انجام دیں. صحیح، ممکن ہے کہ ہمارے توجہ دلانے سے اس وقت تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہماری بات پہ عمل کرے نہ کرے، لیکن کبھی نہ کبھی ہماری بات اس کو کلک ضرور کرے گی. اور جو قرآن پاک میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو کہ نصیحت مسلمانوں کو فائدہ دیتی ہے. تو ہمیں اپنا کام کرنا ہے، خود بھی نیکیاں کریں، برائیوں سے بچیں، اور حتی الامکان مسلمانوں کو بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے منع کرنے والے اس عظیم فریضے کو سر انجام دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فضیلت قرآن پاک میں اس انداز میں بیان فرمائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوئے. تو ہمارے اس بہترین امت ہونے کا جو وصف ہے اس کی بنیاد یہی ہے جو قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. تو یہ وہ کام ہے جو اس امت کا دیگر امتوں کے مقابلے میں ایک نمایاں ممتاز کرنے والا وصف ہے. صحیح. اچھا، ایس ایم ایس یہ موصول ہوا کہ کوئی اسلامی بہن ہے، میرا پاؤں زخمی ہو چکا ہے اور خون بہہ رہا ہے، یعنی ایسی کیفیت ہے، تو کیا اب میں مسح کر کے نماز پڑھوں؟ انگلی پر مسح کروں، پورے پاؤں پہ مسح کروں، کیا اس حوالے سے؟ خون بہہ رہا ہے، رک نہیں رہا، جی، اور زخم پہ اگر پانی بہانا وہ نقصان دے گا، تو اگر واقعتاً زخم ایسا ہے کہ جس پہ پانی بہانا زخم کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، تو اس کو پٹی باندھنے کے بعد جی گیلا ہاتھ اس پٹی پر پھیر دیا جائے تو یوں مسح کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. تو یہ خون رک نہیں رہا تو خون روکنے کے حوالے سے مختلف جو طبی علاج ہوتے ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے. اور حتی الامکان یہ ایک نمازی پر، ایک مسلمان پر، مکلف شخص پہ لازم ہے کہ جو چیزیں طہارت کو ختم کر رہی ہیں، جیسے یہ خون نکلنا، یہ وضو توڑنے والی چیز ہے، اور پھر وضو کے مسائل درپیش آتے ہیں، تو یہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ تقلیل عذر واجب ہے. یعنی جو وضو توڑنے والی چیزیں ہیں ان کو کم سے کم کرنے کی کوشش اختیار کرے کہ یہ عذر یا تو ختم ہو جائے یا کم سے کم ہو جائے. تو ایسے طبی علاج کی طرف بھی انہیں رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے. میرا دارالفتہ اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ کی جو احکام ہے اس میں پلاٹ، مویشی اور نقد رقم ان کو ملا کے کیا 7 تولے کی رقم جب بن جائے تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا ہر چیز کے الگ الگ احکام ہیں؟ جی، زکوٰۃ کس کس مال پر ہوگی، اور جو مویشی ہیں، جانور وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کی کیا صورت بنے گی؟ جو پلاٹ ہے یا سونا چاندی ہے، روپے پیسے ہیں یا مویشی ہیں، تو ان میں جو مویشی ہوتے ہیں ان کا ایک الگ نصاب ہوتا ہے. جو چرائی کے جانور جس کو کہا جاتا ہے، کہ جیسے 40 بکریاں ہیں، 30 گائے ہیں، ایسے ہی 5 اونٹ ہیں، اور یہ جانور سال کا اکثر حصہ خودرو گھاس پھوس کھا کر ہی گزارا کر لیتے ہوں، تو اس طرح کے جو جانور ہیں ان کو فقہی اصطلاح میں سائمہ جانور، سین سے ہے، سائمہ جانور بھی کہا جاتا ہے، چرائی کے جانور بھی کہا جاتا ہے. تو عام طور پہ شہروں والوں کے پاس اس طرح کے جانور نہیں ہوتے، یہ گاؤں گوٹ اور اس طرح کے ایریے سے تعلق رکھنے والے لوگ عام طور پہ مویشی پالتے ہیں. تو ان پر ایک جو 40 بکریوں میں ایک بکری ہے، اسی طرح جو 30 گائے ہیں ان میں بھی ایک مخصوص حصہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، زکوٰۃ دی جائے گی. اس کا نصاب الگ ہے، چرائی کے جانوروں کا نصاب الگ ہے. سونے چاندی، تو سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ، یہ 10 تولہ نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا یہ نصاب ہے سونے میں. چاندی میں 52.5 تولہ چاندی یہ نصاب ہے. روپے پیسے میں سونے کی مقدار اگر روپے پیسے بنتے ہیں تو وہ بھی نصاب بن جاتا ہے، ورنہ چاندی کی جو قیمت ہے 52.5 تولہ چاندی کی، تو اگر کسی کے پاس اتنی مالیت روپے پیسوں کی شکل میں کرنسی، چاہے وہ پرائز بونڈ ہو یا پاکستانی یا غیر ملکی کوئی بھی کرنسی ہے جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے، تو یہ بھی ایک نصاب ہے. پلاٹ ہے تو پلاٹ کی قیمت اس وقت عام طور پہ لاکھ سے تو اوپر ہی پہنچی ہوئی ہے. تو یوں اگر کسی نے کوئی پلاٹ خریدا ہے اور اس کی نیت کاروباری
इरादा था कि इस प्लॉट को मैं ले रहा हूँ, जब नफ़ा देने का वक्त आएगा तो इसको बेच दूंगा, तो यूँ एक कारोबार अलग से चल रहा होता है। सही। तो ये जो प्लॉट लिए जाते हैं जिसका मकसद वहाँ रिहाइश इख्तियार करना नहीं बल्कि नफ़ा आने की सूरत में बेच देना, सही। तो अब ये प्लॉट माले तिजारत हो जाएगा। माले तिजारत में भी अगर उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के निसाब के बराबर है तो उस पर भी ज़कात होती है। तो अब इनको चाहिए कि ज़कात के बारे में दावत इस्लामी की का जो शोबा है अल मदीनतुल इल्मिया, वहाँ से एक किताब अहकाम ज़कात ये शाये हुई है दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के, इसमें सैकड़ों फतावा हैं, तो इस किताब का मुताला फरमा लें। इसी तरह फैज़ान ज़कात ये मुख्तसर सी एक किताब है, इसका मुताला कर लें। और मज़ीद ये भी मशवरा है कि दारुल इफ्ता अहले सुन्नत अगर ये बराह रास्त तशरीफ़ ले आएँ और वहाँ पर बिलमुशाफ़ा मुलाकात करें तो भी ज़कात के बारे में काफ़ी इनको बुनियादी बातें बताई जा सकती हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर्स पर रब्ता किया जा सकता है, और फ़ोन नंबर्स जो टाइमिंग है हमारी सुबह 10 से शाम 4 बजे तक, और जुमे के दिन ये ऑफ रहती है, तो इस टाइमिंग में फ़ोन पर भी ये इस वक्त रब्ता करके अपने किताब भी तो नमाज ज़कात के अहकाम के लिए ज़कात के अहकाम जी उस किताब का भी ये मुताला करें। तो इस तरह ये काफ़ी इस टॉपिक पे अगर ये पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़राए मैंने इनको बयान कर दिए। तो इस तरह और दीगर जो हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन हैं वो भी इस चीज़ को इन मालूमात हासिल करने के ज़राए इख्तियार करें। अल्लाह ताला की रहमत है कि दावत इस्लामी ज़िंदगी के हर शोबे में और जो बिलखुसूस शरई अहकाम हमारे ऊपर लाजिम हैं, जैसे नमाज है, हज है, ज़कात है, तो इन मौज़ूआत पर भी किताबें तहरीर की गई हैं और बाकायदा अल्लाह ताला की रहमत से निज़ाम मौजूद है। बस आप आगे बढ़ें और मद्दी मोहर के करीब आएँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। जैसे ये सिलसिला भी एक बेहतरीन रहनुमाई का सिलसिला है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमें इसमें रहनुमाई मिलती है। जी अगली कॉल लेंगे। वज़ू मैं करता हूँ बाज़ टाइम, लेकिन मुझे ऐसे शक सा पड़ता है कि टूट गया, लेकिन कंफर्म नहीं मैं कर सकता कि मेरा टूट गया, तो अब मैं उससे नमाज पढ़ सकता? जी वज़ू में शक शुबा जो आ रहा है जिसमें यकीन वाली कैफियत नहीं है, ना ज़न्ने गालिब है ना यकीन है, बस एक जहन में ख्याल आ रहा है कि वज़ू टूट गया होगा, तो शक शुबहात की बिना पर हम वज़ू टूटने का हुक्म नहीं देंगे। सही है। जब तक यकीन ना हो। अब यकीन की क्या सूरत है कि या तो वो नजासत का निकलना वो मालूम हो जाए, या वज़ू तोड़ने के लिए जैसे री का खारिज होना वो यकीनी तौर पे मालूम हो जाए उसकी आवाज़ की वजह से या उसकी बू की वजह से। तो अगर कोई यकीन कोई नहीं हो रहा वज़ू टूटने पर तो महज शक शुबे की वजह से वज़ू टूटने का हुक्म नहीं देंगे। ठीक। अच्छा SMS ये मौसूल हुआ कि जैसे हमारे घर में अगर मैयत हो जाती है तो घर के जो बड़े होते हैं वो ये कहते हैं कि जब तक मैयत को गुस्ल ना दे दिया जाए तो उस वक्त तक कुरान की तिलावत ना की जाए, क्या फरमाएंगे आप? कुरान पाक की तिलावत की जा सकती है जी, अलबत्ता आम तौर पे ये होता है कि मैयत को जब तक गुस्ल वगैरह नहीं दे दिया जाए उस वक्त तक उसके करीब में बैठ के कुरान पाक नहीं पढ़ा जाता। सही। वरना उस घर के अंदर किसी और कमरे में भी कुरान पाक पढ़ने में हरज नहीं है। सही। अच्छा इसी तरह अगर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें तो इस पर कुरान मजीद पढ़ने की जो फजीलत है, तो अगर किसी ने हमसे कहा कि भी इसाले सवाब दें तो क्या हम इस तरह की 3 बार पढ़ी हुई सूरह इखलास को 10 कुरान शुमार करके दे सकते हैं कि मैंने 10 कुरान शुमार कर लें आप इसाले सवाब के लिए? बेहतर यह है कि वाज़े कर दिया जाए कि 3 मरतबा सूरह इखलास मैंने पढ़ी है, इसका सवाब 1 कुरान पाक के बराबर होता है। तो यूँ मैंने 30 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी है, 10 कुरान पाक का सवाब मुझे मिला है, तो मैं ये आपके मरहूम को इसाल कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर यह है कि जैसे मदनी चैनल के नाज़रीन को आप मज़ीद इस हवाले से मतलब नेकी की दावत भी पेश करेंगे कि जब हम किसी को ये कहते हैं कि हमने आपको एक कुरान दिया तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स उसकी तरफ से नहीं मिलता, गोया कि एक कुरान मतलब बहुत कम है ये, हालांकि अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हो तो सिर्फ एक दफ़ा का ज़िक्रुल्लाह भी काफ़ी है। तो क्या फरमाएंगे आप, मतलब ढेरों ढेर सवाब हो जब भी बख्शिश होगी, जब भी साले सवाब होगा, या एक कुरान या चंद आयतें भी अगर इसाल कर दी जाएं? देखिए इसमें एक कुरान पाक भी अगर किसी ने इसाल किया है तो इसकी भी अपनी एक बरकत फजीलत है। हत्ता कि अगर कोई सूरह इखलास 11 मरतबा कब्रिस्तान जाए और उसको पढ़ने के बाद अहले कब्रिस्तान को इसका सवाब पहुँचाए तो सबको इसका सवाब पहुँचता है। और इसकी ख़ास फजीलत भी हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बयान फरमाई है। तो
चाहे कुरान पाक की एक सूरत भी अगर किसी ने पढ़ी है तो उसका भी जो सवाब है वो भी इसाल अगर कोई कर रहा है तो उसकी भी एक बहुत बड़ी बरकत है जो मैयत को पहुंच रही है। आमतौर पे इस तरह जो एक मरतबा कुरान पाक पढ़ने का अगर हम सवाब पेश करते हैं तो अगले शख्स को थोड़ी बदमज़गी या उसको मज़ा नहीं आ रहा होता कि ज़्यादा मिलने चाहिए थे। तो ऐसे ही इस्लामी भाई से अर्ज़ है कि आप अपने मरहूम के लिए जो इसारे सवाब कलेक्ट कर रहे हैं आपने क्या किया। सही। अक्सर ऐसा होता है कि फ़ोन पे राब्ते कर रहे होते हैं, मदरसे से राब्ता कर रहे होते हैं, नाज़िमीन से इसारे सवाब ले रहे होते हैं, लेकिन ये इसारे सवाब करने वाला मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर बाइक पे दौड़ता हुआ जा रहा है, ये अपने मरहूम के लिए ख़ुद कितना कर रहा है। तो देखें आपका कोई मरहूम है जिसका इंतकाल हुआ है, वालिद हैं, वालदा हैं, भाई, घर वाली हैं, जो भी हैं, तो इनसे जितनी मोहब्बत आपको है इतनी यकीनन दूसरे को नहीं होगी, फितरी एक चीज़ है। तो आप अपने मरहूम के लिए कितना कर रहे हैं इस पे गौर करें। उसने तो एक कुरान पाक पढ़कर उसका सवाब आपको दिया, आपने क्या कुरान पाक पढ़ा है, आपने क्या सूरह फातिहा पढ़ी है, अपने आप पे गौर करें। दूसरे पे नाराज़ होना ये अच्छी बात नहीं है। जी मदी चल के नाज़रीन इसाले सवाब के हवाले से बड़ी प्यारी बात पता चली कि हम खुद भी तो उसके अंदर हिस्सा लें, हम खुद भी तो कुरान पढ़कर इसाले सवाब करें, और फिर ये कि बिलफर्स आज हम अपने किसी मरहूम के लिए इसाले सवाब जमा कर रहे हैं, कल अगर कोई हमसे ये कहे कि मेरे घर में फौतगी हो गई है तो आप मुझे इसाले सवाब दें, तो हम क्या देंगे उसको। तो इसलिए जितना हो सके ख़ुद भी पढ़ें और इसाले सवाब जमा भी करें, लेकिन जो मिलता है उसका शुक्रिया अदा करें, उस पर हम मुंह ना बनाएं कि आपने तो, मेरी तो तवक्को ये थी कि आप 10 कुरान देंगे और आपने तो एक ही कुरान दिया। तो इस तरह के जुमले ये मुनासिब नहीं है, इससे सामने वाले की दिल आज़ारी भी हो सकती है। जी मज़ीद कॉल लेंगे हम। मेरा सवाल ये था दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से कि उम्रा उसके फ़राइज़ क्या हैं और वाजिबात क्या हैं। ये हैदराबाद से हमारे मुफ्ती नवीद साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साहब तशरीफ़ फरमा है। जी नवीद भाई क्या इरशाद फरमाएंगे इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बुनियादी तौर पे तो उम्रे के 2 फ़राइज़ हैं, एक सबसे पहला तो एहराम है और उसके बाद फिर तवाफ़ करना है। इसके अलावा बकिया चीज़ें वाजिबात में आती हैं, जैसे कि सई करना है और उसके बाद हलक वगैरह या तकसीर वगैरह करवाना है। इसके अलावा जो एहराम की पाबंदियां हैं तो वो हज का एहराम हो या उम्रे का एहराम हो, पाबंदियां सब के अंदर बराबर हैं, पाबंदियों के एतबार से कोई फ़र्क नहीं। अगली कॉल लेंगे। हम जब मर जाते हैं दुनिया से, जो लोग दुनिया से गुजर चुके हैं और अब जो गुजर देंगे, रोज़े क़यामत तक वो कब्र में क्या कर रहे हैं, या उनको पहले से सजाएं उनके हक की मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिलेंगी तो रोज़े महशर में मिलेंगी, या अगर सजा मिल रही है तो वो सजा क्या रोज़े महशर में खत्म होगी। जी मुफ्ती साहब का इरशाद फरमाएंगे कि लोग हज़ारों साल से कब्रों में हैं और ज़ाहिर एक लंबा पीरियड क़यामत का बाकी भी है, तो जज़ा और सज़ा का जो मामला है क्या वो कब्र में ही शुरू हो जाता है, और अगर हो जाता है तो क्या आखिरत में उसमें कोई तखफीफ होगी। इस हवाले से आखिरत का जो हिसाब है वो अलग है, लेकिन जज़ा और सज़ा का जो सिलसिला है ये कब्र से ही शुरू हो जाता है कि कब्र के 3 सवालात हैं, इन 3 सवालात में जो कामयाब हो जाता है तो उसे कब्र के एतबार से नेक शुमार किया जाता है और उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, और जो उन 3 सवालात के जवाब देने पर कादिर नहीं होता तो उसके लिए कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। अब ये जो कब्र है या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर ये जहन्नम के घड़ों में से घड़ा है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कब्र में किसी को अजाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया गया और वो अजाब ही उसके गुनाहों का कफारा हो गया, और वो बरोज़े क़यामत जब उठा तो गुनाहों से पाक साफ होकर उठा, उसके ज़िम्मे कोई भी गुनाह बाकी ना रहा। यह मुमकिन है और यूँ हो सकता है। यूँ ही अगर कोई नेक अल्लाह तबारक व तआला का बंदा है तो उसके लिए पहले ही उसको उसका अजर, पहले ही उसका इजहार हो जाना कि उसकी कब्र जन्नत का बाग बना दी जाएगी, तो कब्र का जन्नत का बाग बन जाना ये इस पर दलालत करता है कि अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा है, आखिरत में भी इसका हाल अच्छा ही होगा। फिर इसके बाद जो बद आदमी है जिसको अज़ाब कब्र दिया जा रहा है, तो वो भी मुसलमानों की दुआओं से, यूं ही औलाद के साले सवाब करने से और दीगर लोगों के साले सवाब करने से, दुआएं मग़फ़िरत करने से, वो भी अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से बच सकता है और उसकी कब्र भी जन्नत का बाग बन सकती है। जी अगली कॉल लेंगे। घर में अगर तस्वीर हो तो नमाज नहीं होती कमरे के अंदर, ये सवाल। जी एक और कॉल दीजिए।
सवाल यह है कि इशा के वितर की आखिरी रकत में क्या बंदा दुआए कनूत के अलावा की दुआएं पढ़ सकता है? जी, मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाएंगे कि अगर जिस कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पर तस्वीर हो तो नमाज का क्या हुक्म होगा? अगर जो तस्वीर है पूरे कद की है, ताजीम की जगह पर है, जैसे कि दीवार वगैरह पे लटकी हुई है और नमाजी के सामने है, तो फिर नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी और उस नमाज का इयादा करना वाजिब हो जाएगा। उस तरह जानबूझ के पढ़ने वाला गुनाहगार भी होगा। और अगर वो तस्वीर पूरे कद की नहीं है या नमाजी के सामने नहीं है बल्कि दाएं या बाएं है या उसके पीछे है या वो नीम कद की तस्वीर है, तो ऐसी सूरत में नमाज मकरूह तंज़ीही होगी और सवाब में कमी होगी। और अगर वो तजलील की जगह पर है, जिस तरह के कारपेट पे तस्वीर बनी हुई है, लोग उसको रोनते हैं, उस पर पाँव रखते हैं, तो ऐसी तस्वीर बिल्कुल नमाज से माने नहीं है। अच्छा, दूसरी कॉल ये थी कि दुआए कुनूत अगर नहीं आती हो तो वितर में फिर क्या पढ़ा जाए? दुआए कुनूत की जगह पर कोई भी दुआए मासूरा पढ़ी जा सकती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया भी पढ़ी जा सकती है, इसी तरह रब्बी जअलनी ये भी पढ़ी जा सकती है। और इसी तरह अगर आपको अच्छी अरबी आती है तो आप अपने अल्फाज में भी दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि उसके अंदर आपके अल्फाज वो हों, आपकी दुआ वो हो कि जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी और से ना की जा सकती हो। अगर किसी और से की जा सकती है तो फिर वो दुआए कुनूत की जगह पर किफ़ायत नहीं करेगी। और अगर वो दुआ सिर्फ वो है कि जो अल्लाह तबारक व तआला से की जा सकती है तो वो दुआए कुनूत की जगह पर किफ़ायत करेगी। जी, बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आपने इस सिलसिले में हमारे साथ ज्वाइन किया। अच्छा, ये शायद फरमाए मुफ्ती साहब के जैसे दुआए कुनूत का थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रही है कि क्या कसदन भी हम तब्दीली कर सकते हैं? एक तो दुआए कुनूत आती नहीं तो हमने दुआए मासूरा ले ली जी, लेकिन आती थी फिर भी हम तब्दीली कर दें? दुआए कुनूत में बहुत सारी दुआएं जी, अगर हम देखें, जैसे बहार शरीयत का दुआए कुनूत का जो चैप्टर है जी, इसमें जो मारूफ हमारे यहाँ दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये मुकम्मल दुआ। इसके अलावा भी कई दुआएं हैं जो दुआए कुनूत के तौर पे अहादीस में वारिद हैं, ठीक है, तो उन दुआओं को पढ़ा जाए और मशहूर यही दुआएं हैं। सही, लेकिन अगर कोई इन दुआओं की जगह कसदन अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली भी कह लेता है तो दुआए कुनूत का जो वाजिब है वो अदा हो जाता है। ठीक है, यानी इस मौके पर वितर में तीसरी रकत के दौरान जो दुआए कुनूत का मरहला आता है इसमें अल्लाह ताला से दुआ करना सही, ये वाजिब है। सही, अब वो दुआ कोई सी भी हम मांग सकते हैं, जैसे कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि वो दुआ वो मुतालबा अल्लाह ताला से किया जा सकता है कि जो अल्लाह ताला के साथ ख़ास हो। सही, वो मुतालबा कि जो आवाम से मखलूक से भी किया जा सकता है, तो ऐसी दुआ नमाज में चाहे दुआ कुनूत का मरहला हो या वो कि जैसे अत्तहियात के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है दुरूद शरीफ के बाद, इस मौके पर भी वो दुआ उन अल्फाजों से दुआ नहीं कर सकते कि जो जिन बातों का आम मखलूक से भी मुतालबा हो सकता है, जिसकी मिसाल फ़ुक़हा इकराम ने बयान फरमाई है। जैसे खाना चाहिए तो ए अल्लाह मुझे खाना खिला दे, सही, तो अल्लाहुम्मा अतइमनी ये दुआ नहीं करेगा। सही, अल्लाहुम्मा ज़व्विजनी ए अल्लाह मेरी शादी करा दे, ये दुआ नहीं करेगा कि खाना खिलाने का मुतालबा, शादी कराने का मुतालबा ये मखलूक से भी आदमी कर सकता है। तो इस तरह की दुआ करने से नमाज फासिद भी हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। तो वो दुआएं आमतौर पे ऐसे कोई दुआ करता नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि वो दुआएं जो दुआएं मासूरा है इन्हीं को तरजीह दी जाए। और दुआए मासूरा में भी जो इस मौके पर दुआए कुनूत के हवाले से मशहूर दुआएं हैं, जिनमें मशहूर तरीन दुआ ये अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका ये भी है, इनको पढ़ें। और दीगर भी दुआए कुनूत हैं उनको भी वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहें। ठीक जी, इस सिलसिले में अगली कॉल लेंगे। मैं शहजाद बात कर रहा हूँ दुबई से। आपसे एक सवाल पूछना है कि अगर किसी से 2-3 सिपारे ज़मीन पर गिर जाएं या कुरान गिर जाए तो उसका क्या कफ़ारा है? जी, मुफ्ती साहब क्या इरशाद फरमाएंगे, कुरान हाथ से छूट गया, हमारे ज़मीन पर तशरीफ़ ले आया या कुछ पारे इस तरह तशरीफ़ ले आए ज़मीन पर, तो क्या हुक्म होगा? कुरान पाक अगर हाथ से गलती से छूट जाए तो इस पर कफ़ारा नहीं है, एहतियातन तौबा करनी चाहिए। और अगर सदका और खैरात वगैरह करना चाहते हैं तो जो मुनासिब सदका और खैरात है, जितनी सदका और खैरात करने की तौफीक है, हस्ब तौफीक उतनी सदका और खैरात वगैरह कर दी जाए। अलबत्ता इस पर कफ़ारा नहीं है। हाँ, अगर किसी ने मुआज़ल्लाह जानबूझकर तौहीन के इरादे से कुरान पाक को ज़मीन पर गिरा दिया या पटक दिया या फेंक दिया तो ये तौहीन की वजह से कुफ्र है। ऐसे बंदे पर फ़र्ज है कि वो तजदीद ईमान करे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करे।
جی بہت شکریہ مفتی نوید صاحب، آپ سلسلے میں ہمارے تشریف لائے۔ مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم معلومات حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔